Hello students, our today's topic is intercompany asset transfer. For that, we will see the prerequisites. First, check the assignment of the second company code to the controlling area by transaction code OX19. Another one is check the assignment of the same chart of depreciation to the second company code OAOB. Please note that if you use a different chart of depreciation to perform transfer of assets between company codes, then you have to configure the cross-company depreciation areas in customization. By path SPRO, SAP Reference Implementation Guide, Asset Accounting Transaction, Intercompany Asset Transfers, Automatic Intercompany Asset Transfer and Define Cross-System Depreciation Area. Next one is create cost center master data in second company code. If it does not already exist, then you can make by you can use transaction code for creating OKEO and or CAS01. Next, copy all the GL accounts by copying company code by using transaction code OBY2. Next one, assign number range interval for second company code by FBN1. Define transfer date and additional parameters for second company code by using transaction code FAA_CMP. Then balance carry forward to the currency year for all the ledgers by using transaction code FAGLGVTR and then create a new asset for your company code. Now, you can use an existing asset to transfer the asset values or create a new asset master while transferring the asset values at the same time. The system automatically determines the relationship between the company codes when you enter the company code. For intercompany asset transfer, you can use transaction code AB table N or by path SAP EasySS accounting, financial accounting, फिक्स एसेट्स, पोस्टिंग, ट्रांसफर एंड इंटरकंपनी एसेट ट्रांसफर। तो यहाँ पर हम इंटरकंपनी एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, बट हमारे पास दो कंपनी है TRE1 एंड TRS1, तो हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं। पर एसेट ट्रांसफर करने से पहले अभी जो हमने प्रीरिक्विजिट्स देखे हैं वो हमें चेक करने होंगे। ये सारे प्रीरिक्विजिट्स अगर ओके है तो ही आप एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम पहले सब चेक कर लेते हैं, देन एसेट ट्रांसफर डिफाइन करेंगे। सैप में जाकर चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमारा प्रीरिक्विजिट था check the second company code to the controlling area by OX19. तो जाते हैं हम OX19, just click on continue and click on position, set TRS, select it and click on assignment। तो देखो हमने दूसरी कंपनी सेम कंट्रोलिंग एरिया को डिफाइन किया। अगर आपका कंट्रोलिंग एरिया डिफरेंट है तो आपके सेकेंड कंपनी कोड के लिए कंट्रोलिंग एरिया मेंशन होना चाहिए। तो हमने एक ही कंट्रोलिंग एरिया दोनों कंपनी के लिए यूज किया है। तो यहाँ पे हमारी कंपनी कोड असाइन है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, चेक द असाइनमेंट ऑफ सेम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्रिएट किया था OAOB। क्लिक ऑन पोजीशन एंड जस्ट एंटर योर कंपनी कोड TRS1। तो देखो हमने यहाँ पर दोनों कंपनी के लिए सेम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन असाइन किया है। अगर हम दोनों कंपनी के लिए अलग अलग चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करना चाहते हैं तो हमें डिफाइन क्रॉस सिस्टम डेप्रिसिएशन एरिया में जाके असाइन करना होगा। जैसे SPRO SAP Reference Implementation Guide, Assets Accounting, Financial Accounting, Assets Accounting, ट्रांजैक्शंस में इंटरकंपनी एसेट ट्रांसफर, automatic intercompany asset transfer, and then define cross system depreciation areas.
तो डिफाइन क्रॉस सिस्टम में जाके हमें यहाँ पे हमारा कंपनी कोड क्रॉस सिस्टम डिप्रिसिएशन एरिया डिफाइन करना है और उसको असाइन भी करना है। नेक्स्ट हमारा प्री रिक्विजिट था कॉस्ट सेंटर। तो बैक जाते हैं, हमारा कॉस्ट सेंटर था OKEON। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा कॉस्ट सेंटर असाइन कर लेते हैं 0KE5। हमारा कॉस्ट सेंटर है ZTR कंट्रोलिंग एरिया ZTRS। जस्ट कम बैक, यहाँ से सेट कर लेते हैं ZTRS। ओके, आया। तो देखो हमने व्हीकल्स बनाया था हमारे पहले कंपनी कोड के लिए, उसी को कॉपी करके आप आपके दूसरे कंपनी कोड के लिए बना सकते हैं। जस्ट क्लिक करके चेक कर लीजिए, देखें ये हमारा बनेगा नए कंपनी कोड। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपी करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपका दूसरा कंपनी कोड असाइन करना है। रेस्ट ऑफ चीजें सेम रहेगी और यहाँ पर करेंसी भी आपकी डॉलर दिखेगी। तो ये हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा प्रीरिक्विजिट है कॉपी ऑल द GL अकाउंट्स बाय कॉपिंग कंपनी कोड। सो OBY2 कंपनी कोड, कौन से कंपनी कोड से कौन से कंपनी कोड में हमें कॉपी करना है वो हम डिफाइन कर सकते थे। कंपनी कोड TRE1 से TRS1 एंड जस्ट फर्स्ट आप टेस्ट रन कीजिए एंड देन एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको यहाँ पे आपका सारा GL कॉपी हो जाएगा। ओके, तो हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है अकाउंटिंग, इनिशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, मास्टर डेटा, GL अकाउंट्स, रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जनरल लेजर, रिपोर्ट्स, मास्टर डेटा, और यहाँ पे देखो आपका GL अकाउंट लिस्ट। जस्ट क्लिक ऑन इट, एंटर योर चार्ट ऑफ अकाउंट। तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट दोनों के लिए सेम है, या फिर बेस्ट ऑप्शन आप जस्ट एंटर कंपनी कोड TRS1 जो हमारा सेकेंड कंपनी कोड है एंड एग्जीक्यूटेड। तो देखो हमारे सारे लेजर्स हमने कॉपी करके रखे हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट रिक्विजिट है असाइन नंबर रेंज इंटरवल फॉर सेकेंड कंपनी कोड। तो आपको यहाँ पर /n FBN1 कंपनी कोड दे दो TRS1 एंड इंटर बस। तो आपको यहाँ पर आपके सारे कंपनी कोड और आपके जितने भी नंबर रेंजेस है सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए नंबर रेंजेस देने हैं। जैसे हमने यूज किया था 76 एंड 77 फॉर एसेट्स, तो आपको ये सारे नंबर रेंजेस कॉपी करने हैं या क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीरिक्विजिट है डिफाइन ट्रांसफर डेट एंड एडिशनल पैरामीटर्स फॉर सेकेंड कंपनी कोड। उसके लिए हम जाते हैं /n FAA_CMP। तो यहाँ पर चेक कीजिए हमारी कंपनी कोड TRS1, रीडिंग लेजर्स एंड हमारा नॉन लीडिंग लेजर। देखो लीडिंग लेजर में हमारा सारा डेटा मेंटेन है, नॉन लीडिंग में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा लेजर सेटिंग जो हमने फर्स्ट कंपनी के लिए दिया था सेम सेटिंग हमें यहाँ पर देना है। हमारा लेजर, हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट, हमारा हाईएस्ट फिस्कल ईयर वेरिएंट चेंज ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर दे सकते हैं। लीगेसी डेटा ट्रांसफर में आपको यहाँ पर ट्रांसफर डेट, लीगेसी डेटा ट्रांसफर इन प्रिपरेशन एंड डॉक्यूमेंट टाइप होगा आपका एसेट पोस्टिंग। तो ये सेटिंग हमने पहले कंपनी को भी दी थी, सेम सेटिंग आपको सेकेंड कंपनी को भी देनी है। नेक्स्ट /n
FAGLGBTR। तो हमारा नेक्स्ट प्री रिक्विजाइट था बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द करेंसी ईयर फॉर ऑल द लेजर्स। तो यहाँ पे आपका लेजर आएगा, आपका कंपनी कोड आएगा, देन आपका कैरी फॉरवर्ड फिस्कल ईयर एंड जस्ट क्लिक ऑन टेस्ट रन। सेम प्रोसीजर हमने फर्स्ट कंपनी कोड के लिए किया था, वही प्रोसीजर आपको यहाँ पर सेकेंड कंपनी के लिए करना है। Okay, so just come back. First remove your test run and then click on execute. Just come back. Our next prerequisite is same नॉन लीडिंग लेजर हमारे दोनों कंपनी के लिए असाइन होना चाहिए। उसके लिए हम जाते हैं FINSC_ledger, click on confirm, continue and just select our non-leading ledger, that's TR, एंड डबल क्लिक ऑन कंपनी कोड सेटिंग्स। तो देखो यहाँ पर हमारी दोनों कंपनी कोड सेम नॉन लीडिंग लेजर के अंदर असाइन होनी चाहिए। नाउ वी विल ट्रांसफर आवर एसेट्स, सो जस्ट कम बैक। And go to accounting, financial accounting, fixed assets, asset, posting, transfer, intercompany asset transfer. First change your company code TRE1, जिससे आपको एसेट ट्रांसफर करना है। देन यहाँ से हम हमारा एसेट सिलेक्ट करते हैं, तो हम ले लेते हैं 40011, डॉक्यूमेंट डेट 1 मार्च, पोस्टिंग डेट भी हम सेम रखेंगे 1 मार्च 2025 एंड एसेट वैल्यू डेट 1 मार्च 2025। जिस कंपनी में आपको ट्रांसफर करना है उस कंपनी का कोड दे दो TRS1। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट है तो हम एग्जिस्टिंग एसेट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर न्यू एसेट्स ले सकते हैं। तो हम न्यू एसेट करके जनरेट करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। हम दे देते हैं रेंज रोवर -1 एंड हमारा कॉस्ट सेंटर हमने एक दिया था एंड देन क्लिक एडिशनल डेटा एंड जस्ट चेक ऑल डिटेल्स। अगर सब डिटेल्स है तो कम बैक, कंटिन्यू एंड जस्ट क्लिक ऑन सिमुलेट। तो देखो सिमुलेट में हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कुछ एरर शो हो रहा है। फील्ड टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ओके 140010। जस्ट कम बैक,
टेक्स्ट कर दो ट्रांसफर, जस्ट क्लिक ऑन अगेन, maintain fiscal year variant. Okay, we have to check A4 for 25. पहले चेक कर लेते हैं /NOVY6 TRS1 TR है, TR11 में भी TR है। Click on new. ABT1N 1st March, again 1st March, new asset value date 1st March, company code, new asset, click on master data, description, cost center, additional data, just come back, continue and click on post button. Field text is required to company on LinkedIn field selection for posting की 40. Okay, just come back. Additional asset, line items, enter the text, transfer, asset, again click on post button, maintain fiscal year variant K4. The period of time for which fiscal year variant K4 was maintained is insufficient. चेक करते हैं K4. ओके, यहाँ पर ईयर सॉरी कैलेंडर ईयर टिक नहीं है तो उसको डिफाइन कर देते हैं. द ओल्ड पीरियड एलोकेशन विल बी डिलीटेड. एंटर एंड सेव. Select the K4, click on periods, continue. Periods cannot be maintained, जरूरत नहीं है तो हमारा ये सेट हो गया है. Just close it, again enter details. 1st March 2025. 1st March 2025. Transfer asset TRS1. New asset, click on master data, enter the description, cost center,
Click on additional data and just check it once. If all is okay, then come back and click on continue and then click on post button. तो देखो यहाँ पर हमारी एंट्री पोस्ट हो चुकी है एज अकाउंट 100011 and 2/7600. To just click on continue button. Now just click on new session and go to AW01N. तो देखो यहाँ पर हमारी रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफर की एंट्री पास हो गई. जस्ट क्लिक ऑन इट. आपकी यहाँ पर एंट्री पोस्ट हो गई. एसेट अकाउंटिंग में जाएंगे तो हमें एसेट्स की एंट्री मिलेगी. हमारा एसेट ट्रांसफर का एंट्री. लाइन आइटम पे क्लिक करेंगे तो लाइन आइटम वाइज डिटेल्स मिलेंगे. जस्ट कम बैक. नाउ चेंज द कंपनी कोड TRS1 and just check Range Rover. देखो यहाँ पर हमारा एक्विजिशन वैल्यू अपडेट हो गया जो हमारे पहले कंपनी में नील हो गया. ये था हमारा इंटर कंपनी ट्रांसफर. Just go to our first company code TRE1 and click on display master data. तो देखो अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपका डीएक्टिवेशन डेट अपडेट हो गया है. अगर हमने पार्शियल किया होता तो डीएक्टिवेट नहीं होता. हमने फुल्ली ट्रांसफर किया है तो ये डीएक्टिवेट हो गया है. That's it.